Hello, good morning, student. Welcome in my channel Amazing Chem Path. So, student, in today's lecture, we are going to discuss very important and interesting topic regarding the discovery of electrons. So, student, let us start. What is the history behind the discovery of electrons, which is really very useful for us. So, student, in the beginning itself, I will introduce you the name of some scientist which actually plays an important role for the discovery of the electrons. So, concentrate here. Diagram is there on the screen, and with the help of diagram, we are going to understand the concept. Okay. So now, see, student, the electrons were discovered. Electrons were discovered in 1897 by J.J. Thomson. Okay, so keep in your mind the name of the scientist J.J. Thomson. Okay, who actually discovered the electrons, and he was studied the properties of the cathode rays at that time. Okay, so he was studying the properties of cathode ray, and after that he was discovered the discovery of the electrons. This is some important things that you have to keep in your mind. But before that, student, there was another one scientist who was actually playing an important role for the discovery of electrons. So their experiments actually helps to J.J. Thomson. So who was that scientist? The name of the scientist is William Crook. So I will write the name of the scientist, which will be easy for you. So the another one scientist was there, means it is this is the before the J.J. Thomson's. Okay, actually keep in your mind. So earlier we can say, correct. So the name of the scientist is William William Crook. Okay, keep in your mind this name of the scientist, William Crook, Crook. Okay, William Crooks. So he was a British scientist, and his experiments again very interesting. He was study regarding the electric discharges through the gases. Means what is that? So how the gases are discharged through the electric panels. Okay, so phenomenon of electric discharge through gases, he was actually work on that. So keep in your mind what is work. He was worked on the electric discharge through the gases. Now we are going to understand what is the meaning of this, correct. So what he was done, student, he was took the discharge tube. Now you can see this is the discharge tube. Okay, so this tube is known as the discharge tube. I will highlight here so it will be easy. So this is the discharge tube. Okay, discharge tube, this is the discharge tube, keep in your mind. Now what he was done, that I will be explaining. What he was observed in his experiment, that we are going to understand here. So he means William Crook. Okay, so William Crook was observed that when an electric current, okay, electric current of high voltage was passed through the discharge tube. So he was passed the electric current through the discharge tube, and these discharge tubes having the very low pressure. These gases, whatever be the gases is there, these gases are very having very low pressure, keep in your mind. So condition is also applied, and in the discharge tube you can see two plates are there, one of metal plates, one is the cathode and another one is the anode. That point also you have to note down. And when this particularly discharge tube was charged by high voltage. Okay, so charged through the high voltage, and this discharge tube contains the gases of low pressure. He observed that rays were emitted from negative terminal. So he observed that, this is the observation which is very important. He observed that this is a negative plate,
and he observed that rays are emitted through negative terminals or from negative terminal, and these rays he called as cathode rays. Keep in your mind. So whatever be the rays was there, this rays is known as the cathode rays. So this is the point how the discovery of cathode rays helps for the J.J. Thomson. Okay, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा बताया अभी। देखिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको कि J.J. थॉमसन का काम चल रहा था। उससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस लिए थे और उसका प्रेशर कम रखा था और उसको हाई वोल्टेज करंट उसमें पास किया था। और उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने दो मेटेलिक प्लेट्स भी रखे थे, एक तो पॉजिटिव प्लेट्स थी और एक निगेटिव प्लेट्स थी। तो निगेटिव प्लेट्स कैथोड और पॉजिटिव प्लेट्स एनोड। तो ऐसे प्लेट्स उसने लगाई थी और हाई वोल्टेज करंट उसमें से पास किया, जो कि गैस भी थे और गैस लो प्रेशर के गैस थे, ये भी आपको इधर याद रखना है। और जब उसने वो हाई वोल्टेज करंट पास किया तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस उसको मिला कि निगेटिव जो टर्मिनल था, कैथोड जो टर्मिनल था निगेटिव टर्मिनल, उधर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहे तो उसमें से उनको ऐसा ऑब्जर्व हो गया कि कुछ रेज इमिट हो रहे हैं। बराबर है, कुछ रेज इमिट जो हो रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से यानी कैथोड से, उसको उसने कैथोड रेज बोला, जो कि वो कैथोड से इमिट हो रहे थे। बराबर है, निगेटिव टर्मिनल से इमिट हो रहे थे, इसलिए उसने उसको नाम दिया कैथोड रेज। तो ये हो गया आपकी कैथोड रेज कैसे एक्चुअली फाउंड हुए विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट से। लेकिन बच्चों हमें देखना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा हिस्ट्री, ये बैकग्राउंड था ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले का। तो अभी हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ कैसे। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, J.J. थॉमसन, अभी फिर से मैं वो साइंटिस्ट जो आपको मैंने पहले बताया था, J.J. थॉमसन ने क्या किया, फिर वो जो कैथोड रेज थे जो विलियम्स क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट में हमें दिखे थे, इधर देखिए फिर से एक बार, ये जो कैथोड रेज थे जो इमिट हो रहे थे कैथोड से, तो कैथोड रेज को उसने फिर क्या बताया, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कंक्लूजन था। तो ये जो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स में क्या पता चला, ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये था J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, याद रखिए। तो J.J. थॉमसन ने वो कैथोड रेज पे स्टडी किया जो विलियम्स क्रूक्स ने एक्चुअली हमें बताए थे। तो J.J. थॉमसन ने उसमें बताया कि वो जो कैथोड रेज है, ये जो कैथोड रेज है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, बराबर है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है उसको बाद में उसने नाम क्या दिया होगा बच्चों, फिर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है आपको, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव ही चार्ज होता है, बराबर है। तो ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए। तो उसने ये कैसे किया ये मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ, ठीक है। तो उसने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया जो विलियम्स क्रूक्स ने किया था, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट। उसने सिर्फ इसमें एक चीज़ जो ऐड की थी वो मैं आपको इधर हाईलाइट्स करना चाहूँगा। उसने क्या किया था बच्चों, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने अप्लाई किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स वाज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। तो उसने क्या किया था, ये जो कैथोड रेज जा रही, देखिए ठीक से, ये कैथोड रेज जा रहे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसने क्रिएट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसने क्रिएट करने के बाद जो कैथोड रेज जो डिस्चार्ज ट्यूब में से जा रहे हैं, तो वो कैथोड रेज क्या हुआ, इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी उधर प्लेट लगा दी एक दूसरी, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से भी हम जानते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल्स का एक प्लेट इलेक्ट्रिकल फील्ड उसने क्रिएट किया और फिर उसको पता चला कि ये जो कैथोड रेज आगे जा रहे थे स्ट्रेट,
वो डाइवर्ट हो रहे यानी डिफ्लेक्ट हो रहे, तो वो सीधा न जाने की वजह से ये नीचे में अभी जाने लगे। ठीक है, ये उसका एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इधर ही। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन दे आर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स, जो उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड्स इधर क्रिएट किया था, याद रखना ये। तो ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं अभी, पॉजिटिव साइड में, तो उधर उसने अट्रैक्शन देखा। तो पॉजिटिव साइड में जो पार्टिकल्स जाते हैं तो वो कौन से हो गए बच्चों, वो तो निगेटिव हो गए, क्योंकि हमें मालूम है पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन होता है। तो फिर उसने कंक्लूड किया कि ये जो पार्टिकल्स है कैथोड रे से जो डाइवर्ट होके पॉजिटिव प्लेट में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा रहे हैं, जो प्लेट उसने लगाई थी, तो उसको उसने नाम दिया फिर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे। आ रहा है समझ में। तो ऐसे बच्चों हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जो कि पहले स्टार्टिंग में किसने किया था, विलियम क्रूक्स ने किया था। जो विलियम क्रूक्स का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने हमें कैथोड रेज बताए, और फिर जे थॉमसन ने कैथोड रेज पे काम किया, और फिर उसने बताया हमें कैथोड रेज में जो निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उसको उसने फिर नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। और उसने उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने सिर्फ वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड्स उसने अप्लाई किया, और उसमें पॉजिटिव प्लेट्स वहाँ पे अप्लाई करने के बाद उसको ये मालूम हुआ कि निगेटिव जो रेज जा रहे हैं कैथोड रेज, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स उसमें अट्रैक्ट हो रहे, और जो पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट के तरफ अट्रैक्ट हो रहे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, फिर उसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द स्टोरी behind how the discovery of electrons takes place. So I hope you understand the discovery of electrons and you enjoy this story regarding the discovery of electrons. तो बच्चों ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जो कि हमारा पर्पज़ है अपने अच्छे अच्छे वीडियो लोगों तक पहुंचाए। अपने जो भी बच्चे लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते, का क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ही ये काम जारी है। तो आपका भी काम बनता है ये अच्छे अच्छे वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जो कि उनका जो भी स्टडी मिस हो रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद में उसको अच्छा लगे और उनकी भी पढ़ाई ऐसे ही वो करते रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।